क्या? Good morning, Nilesh ji. मैं विद्या और मैं हूँ दिव्या। मेरे पास Good morning, Kedar. Good morning. Bye. Good morning. Welcome everyone. Happy morning. Good morning again to Saturday Speak. Expert Speak on Saturday for Plan to Win. Call up everyone. Take 2 minutes to call up your buddies. Happy to see everyone. Welcome everyone. Good morning, Dynamites. Good morning. Good morning. Good morning, Dr. Mohan. Good morning, Shamala. Good morning, our super leaders, our participants. Good morning, Chetna. Good morning, Shamala, Arun, Subodh, Lata. Take a moment, please give a call to your buddies. In Plan to Win, we have clusters and buddies. Give a call, make sure they're all up. Let's go! In the stars tonight, so we bring the fire, set the night light. Hey! Shine through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Whoa! Life is dynamite. Life is dynamite. Shine through the city with a little fucking soul. Light it up like dynamite. Whoa! Light it up, dynamite. So many new faces. Welcome everyone. Happy to have you all. How many of you first time here? Type FT. Are you here for the first time? Type FT in the chat box. Good morning, everyone. A warm welcome to another Expert Speak Saturday morning. Those of you here for the first time, it would be wonderful to have something in the chat box. FT, please type FT if you're here for the first time. And if you've been with us, then you know what this will bring. What a power-packed morning this will bring. Sushil, Meenakshi, thank you. Meenakshi ma'am, Lata, all are for the first time. Awesome. Great. So thank you once again. I want to ask you all, do you want accomplishments in your life with struggle or ease or grace? Type in the chat box. Do you want it with struggle or ease or grace? Ease. Jayesh says ease. Chetna is ease. Yeah. Wow. Of course, ease with ease. My goal is no longer to get a lot of things done, but to rather have less to do, but a lot of things accomplished.
and with ease and grace. तो ये देखा है कि simplicity boils down to one or two things. Identify the essential, जो बहुत जरूरी है उसको identify Nirvana. and eliminate the rest. Everyone, please, can you go on mute? Thank you. सबसे essential आपकी लाइफ में क्या है उसे आइडेंटिफाई करें और बाकी सबको एलिमिनेट कर दें. सो प्लान टू विन एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है टू क्रिएट दैट प्रायोरिटी इन योर लाइफ. इट इज अ लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम which will make you successful in every sphere of your life. It is actually a 365-degree gym to practice being accomplished, creating those habits, and making small shifts in your action, which bring huge results at the end. So I really want you to stay here till the end to get accomplishments in your life with ease and grace. Today's session is rightly so about increased productivity. You will discover how to bring excellence in everything you do. And the most important factor is engagement. Engagement is the key to success. So today, we are honored to have Nilesh G. Surana as the speaker for this Saturday's Expert Speak. We all know him well. I'm sure we all have heard about him. He has also been my coach in Landmark and has been a mentor to so many of us. And now I cannot wait for our super leader, Darshana, to introduce our expert speaker. Nilesh Surana, over to you, Darshana. Okay, thank you so much, Gitanjali. I mean, नीलेश सर के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगी. जब मैं डीप मेडिटेशन कर रही थी, when I was completely, मुझे किसी की जरूरत नहीं, कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, I was really doing very well in meditation. और नीलेश जी का सेशन था तो मैंने बहुत ही ऐसे ऐसे अटेंड किया कि अब मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है. And I'm telling you guys, Nilesh sir is a magician. Okay, he has given me a complete new perspective for life. This is 5 years back, by the way. And right now, again, a few months back, I have got under his training. And अभी एक लेटेस्ट चीज बताओ नीलेश जी, सब लोगों को, आपको भी नहीं पता है, बट सर के साथ मैं एक ट्रेनिंग कर रही हूँ ऑन सेल्स ट्रांसफॉर्मेशन. आई एम आल्सो लर्निंग लीन क्लस्टर. तो पहली बात तो नीलेश जी, आई हैव गॉट इन्विटेशन फ्रॉम कॉर्डिलिया क्रूजेस. And today, me and my family, we are going on cruise because we did very well doing sales for them. So me, my daughter, and my husband, we are invited by Cordelia to attend their cruise. कल रात को ही vouchers आए, so it's like amazing. That's one thing. जो I'm a teacher by profession, guys. Sales तो मेरे लिए पाप था. But नीलेश जी ने बताया कि this service and जितने हाईएस्ट लेवल का सर्विस आप दे रहे हो उतना ही आपको सेल्स करने में मजा आना चाहिए. You should be proud of promoting your work. And I'm so happy that I am not only whatever I'm doing, even if I'm a teacher by profession, Cordelia Cruises is actually giving opportunity to people to live their life and have the best experience and rejuvenate that love. एक वो है नीलेश जी. दूसरी बात, लीन क्लस्टर से मैंने अपने लाइफ में इतने लॉसेस को देखा है, इतने सारे होल्स थे मेरे एंटायर यू कैन से फाइनेंशियल इसमें, दैट I've stopped using my car just like that, going here and there, carpooling. कभी सोच भी नहीं सकती थी कि इतना फंडामेंटल इंप्रूवमेंट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा 6 महीने में. और इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, अभी भी वक्त है, लोगों को बुलाइए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट नीलेश सर इज लाइक. ही इज ऑलरेडी, मैंने उनको पूछा सर आप मेडिटेट करते हो क्या, तो वो मेडिटेट नहीं करते क्योंकि वो ऑल द टाइम मेडिटेटिव स्पेस में होंगे. नीलेश सुराना क्या है वो और आपको पता चलेगा when he talks to you guys. So over to you, Nilesh sir. I'm so excited to have you here in this session. And just like you've touched my life, I'm sure that you're going to touch many of these people's lives. Thank you so much. Thank you very much, Darshana. Thank you very much, Gitanjali, and thank you everybody for being on the call. मतलब ये मेरा privilege है कि आप जैसे rare kind of human being के साथ interact करने को मिल रहा है. Because plan to win, ये वर्ड में ही सब कुछ है. मतलब आप विनर बनने के लिए ये कॉल अटेंड कर रहे हो. सो बहुत कम लोग होते हैं, सोचते बहुत लोग हैं कि हम विनर बनना चाहते हैं,
लेकिन एक्चुअली विनर बनने वाले तो बहुत ही कम होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे तो आरसीबी विनर बनना चाहती थी, दिल्ली कैपिटल विनर बनना चाहती थी, लेकिन आखिर में विनर तो चेन्नई सुपर किंग बना है। सो व्हाट रियली मैटर्स इज कि यू विनिंग द गेम, नॉट प्लेइंग द गेम। So playing the game really matters, but winning the game really works. So हम एंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रॉफिट्स या एंगेजमेंट तभी हो सकता है जब आपकी वीडियो ऑन हो। तो हम 1 मिनट रुकते हैं ताकि सभी की वीडियो ऑन हो जाए। गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजेश, थैंक यू मीनाक्षी। Okay. Thank you. Thank you, Shalaka. Thank you, Fareed. Thank you. नीलेश जी, people are very committed here. काफी लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं और उन्होंने हमें बोला कि वो ट्रैवल कर रहे हैं तो शायद वो वीडियो ऑन नहीं कर पाएंगे। So I acknowledge that for you being here. जो भी लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, please go ahead. Yeah, just hold on for 1 minute so that क्योंकि जिनको सक्सेसफुल बनाना है ना, आपको सस्टेनेबल सक्सेस देना है, वो आपको दिखाई भी देनी चाहिए। मतलब दीवारों को सस्टेनेबल सक्सेस नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है दीवारें। जिंदा लोगों को चाहिए सस्टेनेबल सक्सेस। सो लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स ताकि सभी लोग वीडियो ऑन कर सकें। इतने खूबसूरत लोग वीडियो ऑफ करके बैठ जाते हैं, बड़ा अजीब लगता है। अपनी खूबसूरती को छुपाना नहीं चाहिए। ओके, वेरी गुड। देखो आप 5 लोगों पे से अभी 27 पे आ गए हम वीडियो ऑन पे। तो अभी 23 लोग और पेंडिंग है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट। अनुप कुमार, निर्मला, सुरभि, राहुल कोठारी, प्रफुल्ल, अमित ठाकुर। सॉरी सुबोध, हमें सबके लिए राह देखना पड़ रहा है, लेकिन निर्मला, सुरभि, शिवाली सिंह, शीतल निजावन। हाय वैभव, बहुत दिनों के बाद आपको देख रहा हूँ। ग्रेट। ओके, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑन ऑफ नहीं रखना है नीलांशु। ऑन का मतलब ऑन ही होता है। सो आप जितना साथ में रहेंगे, आप एंगेजमेंट में रहेंगे, ये प्रोग्राम उतना आपके लिए बेहतर होगा। सो आप सभी से निवेदन है कि हम इंटरेक्शन करेंगे, मैं आपसे बातचीत करूंगा ताकि आपको सस्टेनेबल सक्सेस रियल टाइम में क्रिएट करने के लिए सपोर्ट मिले। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सस्टेनेबल सक्सेस? मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जवाब दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सस्टेनेबल सक्सेस? आपको अनम्यूट करके जवाब देना होगा। तो मुझे लगता है सक्सेस मींस one peak point, then low, then another peak point, then low, and sustainable means you are continuously getting the increasing results. क्लासिक, वेरी गुड। और कुछ लोग बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सस्टेनेबल सक्सेस? वो सक्सेस जो मॉडरेटली और स्टेडीली एक्शंस लेते हुए मेंटेन किया जा सके। राइट, वेरी गुड, क्लासिक। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा सक्सेस जिसके लिए बहुत दूसरों का हार्म नहीं होवे, like it can be like an ecosystem where everybody is working towards their success. According to me it's that. And guys, unmute, ये नीलेश सर का क्लास है,
एक साथ सब बोलेंगे तो भी नीलेश सर विल गेट इट. प्लीज गो अहेड एंड अनम्यूट गाइस. हम लोग नीलेश सर इनको बोलते हैं कि म्यूट पे रहो, हम लोग थोड़े से, आपका क्लास कुछ अलग ही होता है. केदार, बलबीर, जस्ट अनम्यूट एंड स्पीक. या अमित आपने Hello. Yes, Nilesh, yeah, Nilesh, what I think is that talent and skill makes us successful, but character keeps us successful, and that is about being sustainably successful. great. For me, sustainability is like, लंबी रेस का घोड़ा बोलते हैं ना. Yeah, Long term. right. Very well said. Yeah, Yeah, Amit, good morning, Nilesh. Yeah, हाँ, Kedar. केदार बोल रहा हूँ. हाँ, जो सक्सेस है that is instant, और sustainable success means it's a continuous process. Right, very good. Classic. Yeah, Amit. Yes. So success, not one time, but continuous process is what a sustainable success. Classic. तो मैं आपको Yeah, अलग for अलग me, चीजें And complete. yeah, for me, success is like sustainable success is like keeping success at peak, during peak also, and when you are low also. So keeping that your work on, never giving up. Yeah. Classic, Nilanshu. Classic. Yeah, Rakhi. Yeah, so creating new innovations in your game. So keep on continuously new things and introducing what you are playing. Classic. Yeah, Mehta. Success would be like, it could be accidental also, incidental also, but when it is sustained, which means that you are continuously taking steps and continuously making changes to let it be a process which is ongoing. So it's not incidental, but very intentional, sustained. Yeah, very good. Very well said, Ranju. Very well said. Yeah, Sonika. सर, निरंतर प्रयास से निश्चित कामयाबी. Very good. बेहतरीन, बहुत बेहतरीन. Yeah, Dr. Mohan. Yeah, achieving whatever we say in any situation. Right, very good. Classic. तो आप सभी ने जितने भी जवाब दिए सभी सही जवाब थे. वैसे मतलब एक भी जवाब ऐसा नहीं था जो आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन बहुत ही बेहतरीन सटीक जवाब दिया आपने. एट द सेम टाइम मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा एग्जाम्पल के साथ. सस्टेनेबल सक्सेस अगर आपको मिल जाता है तो हो सकता है बाय फ्लूक भी हो गया है. हो सकता है कि उस वक्त आपके सितारे चमक रहे थे और आपने एक सक्सेस कॉज कर लिया. प्रॉब्लम क्या होता है उत्तरा, जब सक्सेस मिलता है ना तो लोग उसको इतना शेयर करते कि उनको लगता है कि वो उन्होंने कॉज किया. कभी कभी एनवायरनमेंट की वजह से सक्सेस मिलता है, कभी कभी मतलब लोगों की जरूरत रहती है इसलिए सक्सेस मिलता है. जरूरी नहीं है कि आपने वो सक्सेस कॉज किया है, बिल्कुल जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो मेडिकल वाले थे, मेडिसिन शॉप चलाते थे, अरे वो कोरोना आया तो लोग उनके पास जाके मेडिसिन ले रहे थे, बोल रहे थे आप तो वो क्या उनका सक्सेस था वो या कोइंसिडेंटल सक्सेस था? अपॉर्चुनिटी ऑफ कोइंसिडेंस था. ऐसा थोड़ी था कि उनके वजह से हुआ है. हॉस्पिटल फुल थे वो क्या, सो इट्स लाइक अगर हाँ एक हॉस्पिटल पहले भी फुल था और कोरोना खत्म होने के बाद भी 100% फुल है, पेशेंट को एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो सस्टेनेबल सक्सेस है. तो ज्यादातर लोग बहुत ओवरवेल्म होते हैं सक्सेस की वजह से. मैंने ये कॉज किया, मैंने ये रिजल्ट कॉज किया, और उसके बाद इतने लोग क्लैप करते हैं ना, तो वो इतना मजा आता है जब लोग क्लैप करते हैं, जब लोग आपको तालियां बजाते हैं, तो आदमी सोचता है वाह आई कॉज दिस. उसके अंदर 2-4 साल तो आदमी अच्छे से निकाल ही सकता है. तो हर सक्सेस के बाद है ना लोग मतलब 4-6 महीने बहुत आराम से रेस्ट कर सकते हैं. अगर आप किसी को पूछो ना कि आप डेली नेट प्रॉफिट कमाते हो, तो लोग बोलेंगे नहीं नेट प्रॉफिट आता है, डेली का नहीं पता.
अब अगर किसी को पूछोगे अब डेली आपके अकाउंट में पैसे आता है, नहीं डेली नहीं आता है, लेकिन बहुत आता है, एबंडेंस में पैसे आते हैं, लेकिन डेली नहीं आता है। सो अगर आप देखोगे तो लोगों का हैबिट है सक्सेस का, लोगों को हैबिट सस्टेनेबल सक्सेस का नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैं लीन मैनेजमेंट का काम करता हूँ। तो सस्टेनेबल सक्सेस में क्या होता है अरुण, सस्टेनेबल सक्सेस जितने लोगों ने कॉज किया है वो जापानीज कंपनियां होती है। मतलब केदार जब कोविड लगा और उसके बाद ऐसा सिचुएशन आया कि अगर 5 साल तक कंपनियां बंद रहेगी, प्रोडक्शन रुक जाएगा, तो भी जापानीज कंपनियों के पास 100 ईयर्स सैलरी दे सकते इतना फंड अवेलेबल था। हेलो चेतना, कितने ईयर्स तक सैलरी दे सकते हो प्रोडक्शन बंद रहने के बाद? 100 years. हमारे यहाँ कई सारे लोगों ने सेकंड मंथ में ही 50% सैलरी देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब 100 ईयर तो छोड़ो, सेकंड मंथ में इनके सक्सेस के कमर टूट गई थी। कुछ लोगों ने तो 5th मंथ के बाद सैलरी भी बंद कर दी और ऑर्गेनाइजेशन भी बंद कर दी, नहीं आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो शट डाउन। और ये लोग रोज सवेरे शाम सक्सेस की अलग अलग बातें करते हैं और इनके ओल्ड सक्सेस पे लोग काफी सारे तालियां बजाते हैं। तो अभी किसी ने मुझे सक्सेस की बात की तो मुझे ऐसा लगता है हे भगवान अभी इसका बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि वो सस्टेनेबल सक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं। और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही सिंपल है ताकि आपको सस्टेनेबल और सक्सेस और सक्सेस का डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल है ना, बहुत सटीक होने चाहिए। अगर बलबीर, अगर कोई इंसान एक्सरसाइज कर रहा है और उसने बहुत ही पैशनेटली योगा स्टार्ट कर दिया या जिम स्टार्ट कर दिया, 15-20 दिन जिम गया, सक्सेसफुल हो गया, नहीं मैं बॉडी बना रहा हूँ, मैं बॉडी बना रहा हूँ। लेकिन कोई आदमी बोलता है मैं 28 साल से जिम नहीं मिस किया, मैंने 28 साल में योगा मिस नहीं किया, तो आप बोल सकते हो ओ 28 इयर्स, क्योंकि कुछ लोगों के 28 दिन के वांदे हैं। हेलो, आप कुछ बताएंगे, आप क्या समझ पाए अभी तक ताकि मैं आगे की बात कर सकूं? बेसिकली सर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं उन स्मॉल अचीवमेंट्स, we'll sustain them or not. In fact, चेतना नो सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है, ये that's what we have to see. या बलबीर, can you repeat? सस्टेनेबिलिटी होना जरूरी है कि इट इज लाइक आपने जैसे बोला 28 इयर्स तक उसने करा है, दैट इज मेंटेनेंस, आपने मेंटेन किया आपने उस चीज को। राइट। मैं तळवळकर जी को मिला, तळवळकर ये महाराष्ट्र में काफी जाना माना नाम है तळवळकर जी। तो उन्होंने कहा कि उनको 71 इयर्स हो चुके हैं एक्सरसाइज करके। 71 इयर्स, अभी उनका एज 89 है और वो डेली एक्सरसाइज करते हैं 1 आवर के लिए। और वो जो एक्सरसाइज करते हैं वो 16 साल के लोग नहीं कर सकते। 71 इयर्स। अगर आप देखोगे तो मैंने एक प्रोग्राम किया था जिससे मुझे सस्टेनेबल सक्सेस के बारे में मेरा क्यूरियोसिटी इंक्रीज हुआ। तो टाटा के एक बहुत बड़े एमडी थे, वो आए थे हमारे शहर में, उनका एक प्रोग्राम था, मैं गया था। तो मुझे लगा था कि मैं तो इतना कुछ जानता हूँ, मैं तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में हूँ। मतलब एक रहता है ना, जब आदमी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग में रहता है तो एक एरोगेंस भी होता है कि आई नो एवरीथिंग वाला, एक थोड़ा सा दिमाग में चक्कर घूमता है कि नहीं घूमता है, आई नो एवरीथिंग। और खास तौर पे जिन्होंने सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग किया उनका तो बहुत रहता है आई नो आई नो आई नो। तो उसके बाहर की दुनिया उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मेरे लिए भी नहीं थी। तो और मैं तो खुद ही ट्रेनर हूँ, तो मेरे लिए तो और भी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं गया तो उन्होंने बोला, मैं स्वीडन गया था और उसके बाद मैं फ्रांस गया, उसके बाद मैं जर्मनी पे गया। तो जर्मनी के एयरपोर्ट पे हम लोग रुके थे, तो किसी ने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैंने बताया।
बोले आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? तो मैंने कहा टाटा है। तो कितने साल हो गए आपके ऑर्गेनाइजेशन को? तो आई सेड अगर पूरा कैलकुलेट करो तो 140 इयर्स। तो वैभव उनको बहुत प्राउड फील हो रहा था कि सामने वाला अभी बोलेगा 140 इयर्स का ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लोग तो 5-10 साल में आजकल ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाते हैं, 15 साल में बंद हो जाता है। नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन चलाएगा कि पता नहीं है। और शलाका स्वीडन का वो आदमी था, उसने बोला, इन्होंने पूछा हेनरी उनको कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को कितने साल हुए? तो उन्होंने किया, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को 798 इयर्स हो गए। So sustainable success for 798 years. Hello. 798 years. तो मेरा क्यूरियोसिटी इतना ज्यादा इंक्रीज हुआ, मैंने सोचा यार ये लोगों ने सीखना चाहिए सस्टेनेबल सक्सेस। और वही वजह है मैं लीन मैनेजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हुआ। मतलब मुझे पहले, मैं जब भी कोई ट्रेनिंग करता था तो मैं बोलता था बाकी सब बकवास है, मैं जो कर रहा हूँ वही बेहतरीन है। जब मैंने लीन सोचा तो मुझे लगा यार ये सस्टेनेबल सक्सेस बहुत खतरनाक चीज है। और फिर मैंने जब पढ़ाई करनी स्टार्ट कर दी और मैंने काम करना स्टार्ट किया तो बड़े अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि ये जापानीज लोगों ने जिस तरह से सस्टेनेबल सक्सेस कॉज किया, मैंने सोचा ये पूरे दुनिया को मिलना चाहिए। तो मेरे 2 एजेंडा है रीना लाइफ में। अरुण, फर्स्ट एजेंडा है मेरा लोगों के लाइफ में कि हर ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट का कल्चर आना चाहिए। सेकंड एजेंडा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को लोन लेने की जरूरत ना पड़े। आई विल रिपीट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स को जिंदगी में लोन लेने की जरूरत ना पड़े। अगर कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अगले 25 साल में लोन लेने वाले हैं या लोन ले रहे हैं या लोन ले चुके हैं, 100% वो लोग सक्सेसफुल है, बट उनके पास सस्टेनेबल सक्सेस नहीं है। और उन्हें ये पता भी नहीं है कि वो उनके पास सस्टेनेबल सक्सेस नहीं है। वो एक्सीडेंटल सक्सेस से ही इतने खुश है कि उनको लगता है इट वर्क्स। तो हमने एक प्रोजेक्ट लिया था कि नीलेश जी, आपने कहा 2 चीजें। एक तो यू सेड अबाउट the loan. What was the first thing? Respect for each individual. Got it. Culture of respect. Culture of respect. अगर आप जापान जाओगे ना दर्शना, तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हो रोड से, आपसे गलती हो गई, आपने देखा नहीं गाड़ियां, वहां पे कल्चर है गाड़ियां रुक जाएंगी जब तक आप पूरा रोड पास ऑन नहीं करते हो। तो मेरे एक खास दोस्त थे आर्किटेक्ट, वो उनको पता नहीं था, वो वाइफ का फोटो निकाल रहे थे। वो फोटो निकाल रहे थे इसलिए जापानीज लोगों ने 6 लोगों ने गाड़ियां रोक दी थी। आप फोटो लीजिए, आपके लाइफ पार्टनर के साथ अभी 3 मिनट एंजॉय कर लीजिए, हम लोग बाद में जाएंगे। हमारे यहाँ कभी कभी अगर ऐसा रास्ते में कोई गाड़ी रोक ले तो अगर फोटो निकाल रहे तो हम बोलेंगे ये गार्डन है, तेरे बाप का रोड है साले, तू मतलब मरना है तो और कहीं जाके मर साले तू। तो वहां पे ऑड सिचुएशन में भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। और ये कल्चर उन्होंने बिहार के गया इस शहर से उठाया है। तो गया में 1500 के दशक से 1600 के दशक में हर ह्यूमन बीइंग को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता था कि वो रिस्पेक्ट उसके सक्सेस पे डिपेंड नहीं होता था, उसके पर्सनालिटी पे डिपेंड नहीं होता था, उसके पोस्ट पे डिपेंड नहीं होता था, उसके पास्ट रिजल्ट पे डिपेंडेंट नहीं होता था। वो इसलिए होता था क्योंकि वो कल्चर था। उस कल्चर को, बिहार के कल्चर को उन लोगों ने वहां पे कॉपी करने का डिसाइड किया, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना स्टार्ट किया और पूरा जापान वो कल्चर में आ गया। 1955 में वो अपने जितने ही गरीब थे, मतलब नीलांशु जितने हमारे पास परेशानी थी उतनी परेशानी उनके पास थी, लेकिन फरीद उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री में किसी भी इंसान को कभी भी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और हम सबसे रिचेस्ट होने चाहिए। 1980s तक उन्होंने पूरे 202 कंट्रीज में अपना रुतबा जमाया। मेरे ख्याल से जापान का पॉपुलेशन और एरिया मुंबई सिटी से कम होगा या मुंबई के करीब होगा, और वो कंट्री 202 कंट्रीज पे राज करने लग गई सिर्फ इसी वजह से रिस्पेक्ट and continuous improvement and sustainable success.
तो 1980s में के करीब 19 के यूएस ने एक 1000 टीवी का ऑर्डर दिया। तो नंद कुमार जैसे 1000 टीवी का ऑर्डर आया, तो यूएस का ऐसा था कि आप जब भी हम ऑर्डर देंगे 5 टीवी खराब आए तो चलेंगे, 995 अच्छे आने चाहिए, अगर 6 टीवी खराब आया, 7th आया तो हम आपका डबल पैसा काट लेंगे। तो जापानीज लोगों ने आंसर भेजा, ध्यान से सुनना। उनका आंसर था छाया कि आपने बोला खराब टीवी 5 आए तो चलेंगे, खराब टीवी बनाने के लिए हमें नई फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, हमारे पास उसका बजट ही नहीं है। वाओ। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं गारंटी मेरा, आप लेके जाओ, कभी भी खराब हुआ ना तो मैं बैठा हूँ। हम 35 साल से यहाँ पे, कोई आया ना तो हम 1 मिनट में रिप्लेसमेंट दे देते हैं। वहां पे आप रिप्लेसमेंट देने वाले हैं, इसका मतलब ही आपकी क्वालिटी खराब है, मतलब ये आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो ये जो हमारा कल्चर था उसको उन्होंने कॉपी पेस्ट करके इतने स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, इतने ईज एंड ग्रेस में बनाया। अगर आप जॉब करते हो और अगर आप जापान में हो, अगर विकास आपने 1 मिनट जॉब एक्स्ट्रा किया तो अगले दिन आपको मेमो दिया जाएगा क्योंकि आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा काम क्यों किया। हमारे यहाँ कोई राइट टाइम जाता है तो उसको घड़ी बताई जाती है, क्या है मतलब इतना नहीं चलता है, 6 का 7 बजता ही है, कस्टमर है सामने। तो आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा काम किया मतलब आपने फैमिली को 1 मिनट कम दिया, मतलब आने वाले कार्यकाल में आप कभी न कभी आपके फैमिली में ब्रेकडाउन होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी वर्क प्लेस पे हैम्पर होगी। तो आपको 1 सेकंड भी लेट जाना अलाउड नहीं है। जैसे एंट्री करना लेट अलाउड नहीं है, वैसा एग्जिट भी 1 सेकंड भी लेट नहीं कर सकते आप। और टोयोटो में आपके घर पे जाने के बाद अगर आपको फोन आया साहेबराव घर पे जाने के बाद कि ये कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है, तो आपको अगले दिन मेमो दिया जाएगा क्योंकि काम आपने इस तरह से नहीं किया कि लोग पूरी तरह अवेयर हो और उनको उनकी चीजें मिल जाए। अगर वापस आपकी जरूरत पड़ी मतलब ही आप काम अच्छा नहीं करते हो। हम लोग बड़े शौक से बोलते हैं 24/7 सपोर्ट अवेलेबल है, आप कभी भी फोन करो। और मैं तो सवेरे 6 बजे उठ जाता हूँ। सो अगर आप देखोगे ना, पूरा कल्चरल शिफ्ट लाने की जरूरत है। मैं 7 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि पूरे इंडिया में ये कल्चर शिफ्ट आ जाए कि लोग अभी इसके आगे, मैंने खुद ने लाइफ में बहुत सारे लोन्स लिए हैं, मैं जानता हूँ कि लोन्स कैसे होते हैं, मैं जानता हूँ कि कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय होते हैं, किस तरह से पॉजिटिव थिंकर जो होते हैं वो निगेटिव थिंकर्स को और डिस्ट्रॉय करते हैं क्योंकि नए ग्रुप बन रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वालों का अलग ग्रुप बन रहा है, निगेटिव थिंकिंग वाले और निगलेक्ट होते जा रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ ना? हेलो, यस, नो? और वो निगेटिव थिंकिंग वाले जो अलग ग्रुप बनते जा रहे हैं वो लोग डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और पॉजिटिव थिंकर्स बोल रहे हैं हम ये अच्छा कर रहे हैं, हम वो अच्छा कर रहे हैं, हमें वो अच्छा कर रहे हैं, जिससे निगेटिव थिंकिंग वालों का और डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है। सो हम एनीवे सोसाइटी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोलता कि हम भी थिंकर है वो भी थिंकर है, हमारा और उनका डायरेक्शन एक करने के लिए हमें क्या करना होगा। लोग बोलते हैं वी आर पॉजिटिव थिंकर, दे आर नेगेटिव थिंकर। मैं पॉसिबिलिटी में हूँ, वो नो पॉसिबिलिटी में है, मतलब सब तरफ 2 ग्रुप बनना स्टार्ट हो गए। आप सभी लोग मेरे कॉन्वर्सेशन में एंगेज हो नहीं हो, आप जरा मुझे बता दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि यू आर एंगेज, नॉट एंगेज। Definitely there, sir. Yes. Definitely there. So, मैंने जब ये काम स्टार्ट किया था तो मेरे खास दोस्त थे, उनको मैंने कहा कि आप ये करो, और यूजुअली लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं मेरे पे, मतलब आई एम द मोस्ट ट्रस्टवर्दी पर्सन, ऐसा मानते हैं लोग। मैं सच है झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तक का सिर्फ एक छोटा सा एक्सपीरियंस है, उसके वो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। मेरे पास पूरी आइडियोलॉजी तो है नहीं, मेरे पास रियलिटी तो है नहीं, लेकिन जनरली मैं जब किसी को बताता था तो लोग तुरंत यस करते थे। तो मैंने कहा कि आप कर लो लीन मैनेजमेंट, और हमने काम स्टार्ट किया। तो 1 साल बाद उन्होंने मुझे आके बोला नीलेश जी थैंक यू वेरी मच, आप
के वजह से मेरी बेटी की शादी हो जाएगी, जितना भी आपने बताया वो बेटी की शादी उसमें निकल जाएगी, मेरे जितने पैसे बचे। मैं वाह कितने पैसे बचे सर? बेटी की शादी निकल जाएगी। तो मैंने फिर पूछा उनकी मिसेस को, आपके बेटे की शादी में लगाते कितने पैसे? बोले ज्यादा अपना बजट नहीं होता है, 2-1 करोड़ रुपए लगाते हैं हम लोग। तो मेरे लिए एकदम सरप्राइजिंग था कि 2 करोड़ रुपीस का सेविंग। और उस दिन से मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। मतलब ये फिलॉसफी हर किसी को पता होनी चाहिए। तो मैं आपको अभी कुछ चीजें बताऊंगा, आज की आज आपका बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा, कल परसों तरसों नहीं, अभी तुरंत। जैसे 9 बज जाएंगे, 9:03 से आपका बेनिफिट स्टार्ट। रेडी फॉर द बेनिफिट्स? यस नो? तो उसके लिए एक स्टार मार्क कंडीशन है। हम जन कंडीशन रहते हैं ना, ऐसे स्टार करके रखे नीचे रहते हैं, वीडियो ऑन होना चाहिए। तो वी हैव टू वेट फॉर अगेन 1 मिनट ताकि लोग वीडियो ऑन कर सकें। आप लोग दर्शना जनरली वीडियो ऑन करने को नहीं बोलते क्या आपके प्रोग्राम में? मेरे वजह से ब्रेकडाउन हो गया सबके लिए। सुबह सुबह सर वी गेट अ रिक्वेस्ट कि कुछ चीजें चलती रहती है सैटरडे मॉर्निंग, जैसे मैं भी अभी यहाँ थी तो यहाँ से उठो वहां जाओ, तो वो थोड़ा सा शायद अनकंफर्टेबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मैं जो बताने वाला हूँ उसके पहले और एक अच्छी चीज बता देता हूँ। मैंने मिशन कंट्रोल प्रोग्राम 27 टाइम्स किया है, जो हम लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हिस्सा हुआ करता था। उसमें हमारे को एक चीज पे ट्रेन किया गया था, कभी भी एक काम एक साथ करो। अगर आपने एक साथ 2 काम किए तो आप लाइफ टाइम प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। टिल डेथ आपका अटेंशन डिवाइडेड रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी लीड करते करते व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ या खाना पका रहा हूँ, तो मैं कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, कभी भी, टिल डेथ। इनफैक्ट मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी कम होती जाएगी कि एक दिन मुझे सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे लेक्चर देने आएगा, मैं प्रोडक्टिव नहीं रहूंगा। लेकिन मैं प्रोडक्टिविटी पे लेक्चर बहुत अच्छा दे सकता हूँ। तो आपको कभी भी याद रखना है, अगर आप एक काम करते हो, आप मल्टीपल चीजें करो, लेकिन एक साथ एक ही काम करना चाहिए। तो मैं अगर बिजनेस में रहता हूँ सिर्फ बिजनेस करता हूँ, जब मैं लोगों की लाइफ में डिफरेंस करता हूँ तो सिर्फ लोगों की लाइफ में डिफरेंस करता हूँ, जब मैं मेरे वाइफ के साथ रोमांटिक मूड में रहता हूँ तो सिर्फ रोमांटिक मूड में रहता हूँ, जब मैं मेरा काम करता हूँ तो सिर्फ काम करता हूँ। मैं कभी भी एक साथ 2 काम मैंने पिछले 13 साल में नहीं किए, नॉट एट ऑल। वही वजह है कि मेरा प्रोडक्टिविटी मेजर एक बार मैंने टेस्ट दिया था, मैं 23 लोगों का काम मैं अकेला करता हूँ। आई एम हैविंग कैपेसिटी टू वर्क। मेरे पास अगर 23 एम्प्लॉय चाहिए तो मैं अकेला काम कर सकता हूँ। मेरे साथ जितने सॉफ्टवेयर के बिजनेस करने वाले लोग थे, उनके पास 50 से स्टाफ हुआ करते थे। हमारे पास 3 स्टाफ थे, 3 स्टाफ। कॉम्पिटिटर के पास 60 स्टाफ। हमने 3 स्टाफ में जिनके पास 60 स्टाफ थे उससे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस किए। तो ये हमारा रेशियो रहा है। तो आपको अगर प्रोडक्टिव होना है तो लाइफ में कभी भी एक साथ 2 काम नहीं करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सिर्फ सुनेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। अगर आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे एनहांस होना स्टार्ट होगी। इट विल टेक टाइम, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो ये लीन मैनेजमेंट को मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ, बहुत ही सिंपल, ताकि आप तुरंत 9 बजे बेनिफिट ले सकें। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सभी लोग जवाब दें मैं जो सवाल पूछूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पानी की बहुत बड़ी टंकी है और उसके पानी भरने के लिए एक आधा इंच का पाइपलाइन आपने लगाया है जयेश, और वो पानी 2 घंटे में फुल हो जाता है, मतलब वो टंकी फुल हो जाती है। और नीचे उसके, वो टंकी के नीचे कुछ छेद है, मतलब उसके नीचे 5 छेद है। तो वो छेद रहने की वजह से जो पानी 1 दिन रहना चाहिए था वो 2 घंटे में खत्म हो गया। तो जयेश आपने सोचा यार बहुत ज्यादा पानी कंज्यूम हो रहा है, शायद लोग घर में ज्यादा है। तो साहेबराव आपने क्या किया, आधा इंच पानी चढ़ता था तो आपने क्या किया, 1 इंच का पाइपलाइन लगा दिया। नीलांशु पाइपलाइन डबल कर दिया। पानी कितने देर में खत्म होगा? पानी कितने देर में खत्म होगा?
उतनी ही देर में खत्म उतनी देर में खत्म होएगा। नहीं टाइम में उतने टाइम में, क्योंकि छेद उतने ही है ना। हाँ आपका अगर, क्योंकि आपने पानी चढ़ाने का स्पीड बढ़ा दिया, लेकिन छेद तो आपने बुझा ही नहीं है, छेद तो उतने ही है। अभी आपने 5 इंच का पाइपलाइन डाल दिया, तो भी कितनी देर में खत्म होगा? उतने टाइम में खत्म होगा, उतने ही देर में। छेद उतने ही है। अभी प्रॉब्लम क्या है, हर कोई बिजनेस करता है या जॉब करता है ना, वो रोज ग्रोथ करते जा रहा है, रोज ग्रोथ करते जा रहा है, लेकिन वो उसके बिजनेस और उसके सैलरी में जितने छेद है वो बुझा ही नहीं रहा है, वो छेद बंद ही नहीं कर रहे हैं। तो लोग एक बिजनेस कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, एक प्रोडक्ट था 4 प्रोडक्ट बना लिए, 6 प्रोडक्ट बना लिए, 15 प्रोडक्ट बना लिए, एक्सपेंशन हो गया। मेरा इधर शोरूम है, उधर शोरूम है, मैंने ये विंग चालू किया, वो विंग चालू किया, इतना सब किया, पैसा कितना बचा? घंटा, कुछ भी नहीं। अचानक आपके कितने सारे लोग रहते हैं ना, बड़े पॉसिबिलिटी डिक्लेयर करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हु आई एम इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एबंडेंस। उसको अचानक एक फोन करो आप, बोला मेरे को एक 2 करोड़ रुपए चाहिए, व्हाट विल हैपन? फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर, स्विच ऑफ। व्हाट विल हैपन? वेरी गुड दर्शन, व्हाट विल हैपन? सर वो ब्लॉक कर देगा पहले तो आपको। राइट, That तो फिर आप person will कम्युनिकेशन में ही नहीं रहेंगे, वो छोड़ के राइट, आप अगर देखोगे तो, या सुबोध, Yeah, that person will experience instant scarcity in the world. एग्जैक्टली। और हम देखते हैं कि लोग 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 15 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 25 साल से जॉब कर रहे हैं, फिर इनका पैसा गया किधर? तो इनका पैसा गया किधर? इन्होंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन इनके टंकी में छेद ही बहुत है। और अगर किसी के पास पैसे बच गए, वो एक्सीडेंटली बचे हैं, उसमें उनकी कोई भी उनका ये नहीं था। तो लोगों ने पैसा बहुत कमाया, मतलब टंकी में पानी बहुत चढ़ाया, लेकिन टंकी में पानी रुका नहीं, आया और चला गया। कुछ लोगों का टंकी में पानी चला नहीं जाता है मोहन जी, वो आने से पहले कहा जाने वाला रेडी रहते हैं, ये EMI देना है, ये करना है, वो करना है, उसका पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करना है, और उसके बावजूद भी उनको चिंता रहती, नहीं अभी और कुछ करना पड़ेगा, और एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना पड़ेगा। आई एम एम्पावर्ड टू टेक द एक्शन। टंकी में पानी नहीं। हेलो, सेम एक्सपीरियंसेस विद मी। क्या बोल रहे हो वो? इसका जीता जागता जमुना नमूना मैं हूं। और मैं बोलता हूँ कि इसके 4 सिम्टम्स हैं। रेडी फॉर द सिम्टम? क्या आपके टंकी में पानी नहीं रहता, इसके सिम्टम्स बता दूं? यस, नो? या गुड। अगर आप व्यापारी हैं और अगर अगले पिछले 2 साल में आप आपके एम्प्लॉय की सैलरी डबल नहीं कर पाए हैं, तो डेफिनेटली आपके टंकी में छेद है। तो जितने भी व्यापारियों ने पिछले 2 साल में अपने एम्प्लॉय की सैलरी डबल नहीं की है, उनके टंकी में छेद है। क्योंकि बायजूस ने सबकी सैलरी डबल कर दी है, तो क्योंकि उनके टंकी में छेद नहीं है। कोको कोला ने सैलरी डबल कर दी है क्योंकि उनके टंकी में छेद नहीं है। पिछले 2 साल में 1% कंपनियों ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी डबल कर दी है। 99% कंपनियों ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय की सैलरी कम कर दी है। तो फर्स्ट सिम्टम। सेकंड सिम्टम, इनको बार बार लोन लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये लोन लेते रहते हैं या इनका लोन कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तीसरा सिम्टम, इनके पास कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आई जिसमें पैसा इन्वेस्ट करने का टाइम आएगा, तो ये लोग बोलेंगे आई विल गेट बैक टू यू। ये तुरंत कभी भी इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, कोई भी अपॉर्चुनिटी को तुरंत कैप्चर नहीं कर सकते। चौथा सिम्टम है, इनके पास एम्प्लॉय एंगेजमेंट कभी भी नहीं दिखाई देगा। आपको क्या लगता है ये सिम्टम्स कितने व्यापारियों में और कितने सैलरीड क्लास में देखा जाता है?
99%. Almost everywhere. राइट। तो मैंने देखा है, मैं जब फर्स्ट टाइम दिल्ली गया था ना, तो एक मेरे सामने बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सामने आए, बोले हमारा 6 कंट्रीज में एक्सपेंशन है, हमारा इंडिया के 16 शहरों में काम चल रहा है, हम सर्विसेज 80 शहरों में दे रहे हैं। मैं बोला वाह क्या आदमी है यार, इसके साथ टाइम यार, ये आदमी अपने को मिल जाए तो लाइफ बन जाए, बल्ले बल्ले। जैसे ही मैंने ये बात की तो उन्होंने बोला नीलेश जी हमारी तो टंकी गायब है, छेद नहीं है, टंकी गायब है, हमारा तो पानी किधर से आ रहा है और किधर से जा रहा है वही पता नहीं, हमारा नीचे का ढक्कन है वही गायब है। तो आप अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये छेद क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अगर मैं ये छेद बता दूंगा तो आज के आज आप ये छेद रोक पाएंगे। कुछ लोगों के टंकी में छेद नहीं होते डॉक्टर मोहन, वो छेदी लाल होते हैं। छेदी लाल मतलब वो रोज सवेरे उतरते हैं टंकी में और एक छेद बनाते हैं, वो रोज एक्सपेंशन करते हैं ताकि और एक छेद बन जाए। ओह वी नीड 7 मिनट बिफोर 9, काफी टाइम रिड्यूस हो गया मेरा। गुड, थैंक यू वेरी मच गीतांजलि। तो मैं मैनेज करता हूँ। सो आप अगर देखोगे, सो अगर हम लोग इस तरह से काम करते रहे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। तो आप कितने लोग अपने छेद बुझाना चाहते हैं बिजनेस या सैलरी में? प्लीज रेज योर हैंड ताकि मैं समझ सकूं कि आप सही में पैसे बचाने में इंटरेस्टेड है। ग्रेट। तो मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा ताकि आप तुरंत इसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकें। सो सबसे पहला छेद मैं बता देता हूँ, जो कोई भी बिजनेस में सैलरीड इंसान करता है। मैं 2 ही बता पाऊंगा, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय की बहुत ही किल्लत है। तो सबसे बड़ा छेद हम मानते हैं पूरे कोई भी बिजनेस में, वो होता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। तो हमारे पास जितनी जरूरत है उससे ज्यादा स्टॉक होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल फरीद, आप जिस टेबल पे बैठे हो अभी, उस टेबल पे अगर आपको लिखने के लिए कुछ चाहिए तो आपको एक पेन चाहिए जितना, या लता आपको एक पेन चाहिए। लेकिन आप किसी के भी टेबल पे देखोगे तो आपको कितने पेन मिलेंगे? 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, 8 मिलेंगे। मतलब उसको चाहिए कितना? 1 है, कितने? 8। तो मतलब उसके पास 8 टाइम्स इन्वेंट्री ज्यादा है। आपका अगर आपने कबर्ड खोल दिया तो आपको कितने शर्ट चाहिए या कितनी साड़ियां चाहिए, अगर आप देखोगे और जितनी है कैलकुलेट करोगे तो आपको कितने लोगों को लगता है कि आपके पास स्टॉक ज्यादा होगा? हेलो? 100%। 100%। और अगर आप हिम्मत वाले हैं तो अपने वाइफ का एक बार कबर्ड खोल के बता दो स्टॉक ज्यादा है, दिन भर पिटोगे। आपकी हालत ऐसी हो जाएगी कि आप वापस उठने के काबिल नहीं रहोगे। इसके बावजूद लोग बोलते हैं मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो मैं सूरत गया था, उन्होंने बोला कि हमारे पास नीलेश जी ये प्रॉब्लम नहीं है, हम कैलकुलेटेड लोग हैं। तो मैंने कहा वेरी गुड। तो उन्होंने बोला चलिए आप कॉफी पीते घर पे। हम गए कॉफी पीने के लिए नजर, तो मैंने बाहर, जैसे मैं आया उनके घर के बाहर, मैंने उनके शूज के रैक का फोटो लिया। जैसे ही फोटो लिया मैंने बताया कि जितने आपने शूज खरीदे हैं ना सुधा, ये शूज का कितना टोटल होगा बताओ। तो उन्होंने टोटल मारना स्टार्ट किया मीनाक्षी, तो वो 4.5 लाख रुपए का था जो घर के बाहर का स्टॉक था। मैंने बोला अभी घर के अंदर का स्टॉक गिनना स्टार्ट करूं? नहीं सर, इतना डिप्रेशन आज के लिए काफी है। तो अगर आप देखोगे तो अपने पास हर जगह पे स्टॉक बहुत ज्यादा होता है, और व्यापारी बड़े तारीफ से बोलता है कि मेरे पास इतना स्टॉक है। कोई बोलता है मेरे पास 5 करोड़ का स्टॉक है, कोई बोलता है 50 करोड़ का स्टॉक है, कोई बोलता है 50 लाख का स्टॉक है। कोई लोगों का स्टॉक अलग होता है। अगर डॉक्टर है तो उनके हॉस्पिटल के बेड ये स्टॉक होता है। किसी के पास नॉलेज है तो वो उसका स्टॉक होता है। तो आपका नॉलेज भी अगर वेस्ट हो रहा है तो हम बोलते हैं वो छेद है। दूसरा छेद जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेवरेट है आपका, जिसके लिए आप दीवाने हो, वो है अनयूटिलाइज्ड टैलेंट।
मतलब हमारा टैलेंट पूरा इस्तेमाल ही नहीं होता है, और हमारा टैलेंट पूरा इस्तेमाल नहीं होता है और उसके बाद हम लोग सोचते रहते हैं लोगों को टैलेंट की कदर नहीं है। आप में से कितने लोग एग्री करते हो कि आपका टैलेंट पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है? बाय द वे हाथ नहीं खड़े करने चाहिए, आपकी पूरी बॉडी खड़ी हो सकती है इसके अंदर। आपने शीर्षासन करना चाहिए इसके अंदर। हमारे टैलेंट, मैं मानता हूं कि मैंने आज तक जितना काम किया है शायद मेरा 1% टैलेंट भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ होगा। अगर मैं पूरा टैलेंट पूरा इस्तेमाल कर दूं तो राजपाल मैं यूनिकॉर्न बन सकता हूँ। यूनिकॉर्न मतलब 1 साल में 1000 करोड़ का प्रॉफिट। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारा टैलेंट भी पूरा इस्तेमाल नहीं होता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 लोग हैं लता, तो 50 लोगों का टैलेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो 50 लोगों का मिलके वेस्ट हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों का टैलेंट वेस्ट हो रहा है। तो मैं अब भी एक कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, वहां पे 650 एम्प्लॉई है। तो हमने टोटल निकाला है सिर्फ 650 लोगों का टैलेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो हम 24 गुना ग्रोथ 1 साल में कर पाएंगे, 24 टाइम्स। तो ये छेद माना जाता है। तीसरा, हमारे दिल के सबसे करीब है, बहुत प्यारा है, आप जिसके बिना रह नहीं सकते, आखिरी 1 मिनट के करीब मुझे बताना होगा, उस छेद का नाम है वेटिंग टाइम। सारी दुनिया में वेटिंग टाइम है। देखो हम सवेरे से राह देख रहे हैं कि लोग वीडियो ऑन करेंगे, वेटिंग टाइम ऑन है। अगर 25 लोगों ने 50 मिनट से वीडियो ऑन नहीं किया तो 50 × 25 1250 मिनट वेटिंग टाइम हो गए। अगर आपके किसी ने समय पे पैसे नहीं दिए, वेटिंग टाइम हुआ। अगर आपको किसी को आपकी वजह से राह देखनी पड़ी, वेटिंग टाइम हो गया। अगर आप लोगों के पास कुछ डिलीवर करना चाहते हो, वेटिंग टाइम हो गया। आप कुछ रिजल्ट 2016 में कॉज करना चाहते थे, 2021 हो गए, वेटिंग टाइम हो गया। फैमिली बोलती है बहुत अच्छे हैं मेरे हस्बैंड, लेकिन पता नहीं इनके नसीब में सक्सेस थोड़ा कम है, भोले ये बोल, इनका सब लोग इस्तेमाल करते हैं, इनको उतना कुछ मिलता नहीं है। तो आप अगर देखोगे तो वेटिंग टाइम, मेरे पास बहुत कुछ कहने के लिए लेकिन मेरा समय समाप्त हो रहा है। तो अदरवाइज मैं आपको इसका बहुत सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन देता था ताकि, लेकिन आप आज 3 प्रैक्टिस कर सकते हो। आज आप आपके कबर्ड देख लीजिए, घर देख लीजिए, अगर आप बिजनेस करती है तो वहाँ स्टॉक देख लीजिए, अगर आपके पास एम्प्लॉइज है तो कितने एम्प्लॉइज है उसका स्टॉक देखिए और चेक कीजिए कि आपके पास एक्सेस इन्वेंट्री और स्टॉक कितना है। अगर आप एक चश्मा पहनना चाहिए, अगर आप 2 चश्मे बनाए हैं तो आपके पास वापस डबल इन्वेंट्री हो गया। अगर आपके पास 1 एयरफोन होना चाहिए, 2 है तो आपके पास एक्सेस स्टॉक है। आपके पास 1 मोबाइल नंबर चाहिए लेकिन 2 सिम कार्ड है, आपके पास एक्सेस स्टॉक है। तो अब हर छोटी छोटी चीज में आप एक्सेस स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो इस तरह से आप आपके लाइफ को और बेहतरीन बना सकते हो। जैसे ही ये सब छेद बंद हो जाएंगे तो जो भी पानी गिरेगा वो पानी आपके पास ही रहेगा। मतलब जो वैभव आप पैसा कमाओगे वो पैसा आपके पास रहेगा। हमारा ड्रीम है लोग इतने मेहनत से पैसे कमाते हैं वो उनके ही बैंक अकाउंट में रहते हैं या उनके एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में जाने चाहिए। वो चाइना, सऊदी अरेबिया इस कंट्रीज में नहीं पहुंचना चाहिए। आप में से कितने लोग एग्री करते हो इस बात को कि वो पैसा हमारे अकाउंट में या हमारे एम्प्लॉय के अकाउंट में रहना चाहिए, जो कि जबकि हम जो भी पैसा कमा रहे हैं हमारा अभी 45% हिस्सा हमारा चाइना से परचेसिंग में जा रहा है। हम जो भी पैसा कमा रहे हैं वो पेट्रोल डीजल हम जितना खरीदते हैं वो पैसा हम सऊदी अरेबिया भेज रहे हैं। तो हम मेहनत कर रहे हैं और वो लोग ऐश कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारी देश की संपत्ति हमारे देश में अगर हम रख पाए तो बहुत बेहतर होगा। कंपलसरी नहीं है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए 94-227-06050। I will repeat 94-227-06050।
06750। तो आपको, अगर आपको लगता है कि आपके पास ये विज्ञान होना चाहिए, ये साइंस होना चाहिए, आप मुझे सिर्फ व्हाट्सएप कर देना, मैं आप तक ये विज्ञान पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और जब आपको मुनाफा हो जाएगा तब आप बोलोगे हाँ ये रियली वर्क करता है। अभी तक मैंने 400 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन का लोन खत्म किया है, 0 लोन पे कर दिया है, जो लाइफ टाइम लोन फ्री नहीं होने वाले थे। मैंने अभी तक कम से कम 16,000 लोगों को लोन लेने से बचाया है, हाउसिंग लोन तक नहीं लेने दिया मैंने उन लोगों को। मैं उम्मीद करता हूं अगर मैं आपके लाइफ के टंकी में पानी रोक पाया, मैं आपका प्रॉफिट कुछ बढ़ा पाया, तो मैंने शायद आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट किया, प्लस हमारे कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन किया, क्योंकि मैंने अपना कंट्री का पैसा अपने कंट्री में रखने में मैं कुछ कारगर साबित हुआ। थैंक यू वेरी मच गीतांजलि कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच दर्शना, एवरीबॉडी, कि आपने मुझे मौका दिया। मैं बहुत सारी बातचीत आपके साथ करना चाहता था, मैं अभी जो मैं नहीं चाहता हूँ वो कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ और आपसे बार बार मिलता रहूंगा ताकि मैं आपके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं और आपको अमीर रियलिटी में बना सकूं, कॉन्वर्सेशन में नहीं बना सकूं। हम चाहते हैं कि लोग अमीर रियलिटी में हो, कॉन्वर्सेशन में ना हो। थैंक यू वेरी मच। यस, गो अहेड। Thank you. Yeah. Thank you, Nilesh ji. You know what? And I want to tell you guys and Nilesh ji आपको भी कि हम आपको ऐसे छोड़ने वाले हैं नहीं. You are going to come back and you are going to complete these 8 kind of losses, which is really very critical. So जैसे नीलेश सर ने कहा है, गाइस दिवाली के लिए बहुत बढ़िया मौका है। पहले सबसे पहले तो इन्वेंटरी चेक करो और इन्वेंटरी में जो भी अननेसेसरी चाहिए नहीं चाहिए, आई एम सॉरी, यू कैन जस्ट कंसिडर क्या करना है आपको इसके बारे में। सो जस्ट बी अवेयर अबाउट इन्वेंटरी, वेटिंग टाइम एंड ऑल्सो टैलेंट वेस्ट। सो नीलेश जी आप वापस आ रहे हैं। गाइस जस्ट स्टे बैक फॉर 3-4 minutes. I just want to complete this by really thanking each one of you to be here. नीलेश जी ने जो भी कहा है, डू यू अग्री कि वो हमको बार बार लगातार करना पड़ेगा? इस दिवाली में आपने इन्वेंटरी चेक किया तो आपको नहीं लगता कि दिसंबर तक फिर से इन्वेंटरी बढ़ने वाली है? प्लीज पुट इन द चैट, डू यू अग्री दैट you require solid habits and continuous reminders to do what Nilesh sir is saying, or for anything that is for your success. Agree? Yes. Perfect. Thank you, Hemant. Thank you so much. Yeah. So I want to quickly tell you about Plan to Win. So Plan to Win में आप आए हो, आपको किसी ने इनवाइट किया है। सबसे पहले तो आप उनको धन्यवाद कीजिए कि नीलेश जी को सुनने का आपको मौका मिला है। नीलेश जी will be coming soon one more time. He'll be continuing from there. And Nilesh, I also want you to speak about customer delight and discovering excellence, so that you can really take care of those shine in and around you. So guys, stay tuned. जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनको छोड़ना मत, पहले तो उनको थैंक यू बोलिए और उनके पास से कंटिन्यूअसली अपडेट लीजिए। Besides, we also are going to give you a group link जहां पे आप अपने there is a group that we have called as Heart to Heart. So we want you to join that group जहां पे आपको ऐसे updates मिलेंगे। We meet every Saturday for Expert Speak. Nilesh ji will be coming soon once again to guide all of us. Guys, another thing is about Plan to Win. मैं आपको 2-3 मिनट में क्विकली बताना चाहूंगी कि Plan to Win is a program जहां पे आप हैबिट्स क्रिएट करते हो। It's a monthly coaching program. So I want to know that how many of you are interested in creating these success habits. Type me in the chat. और जल्दी से वो ग्रुप ज्वाइन करिए जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि वहीं पे आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे। Have you joined the group? If you have joined the group right now, just type joined. Perfect. And yes. और ये आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बताइए, क्योंकि every Saturday at 8 AM we meet for Expert Speak, and पूरे मंथ
हमारा प्रोग्राम चलता है जहां पे आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, नेक्स्ट लेवल का सक्सेस एक्सपीरियंस कर सकते हो बाय टेकिंग, जैसे नीलेश जी ने कहा, कंटिन्यूअस एक्शंस. एंड एक्चुअली नीलेश जी ने ये कहा नहीं है, वो नीलेश जी हमारे अलग ट्रेनिंग में बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हो गई. आई एम ऑल द टाइम कंसिडरिंग हिज लर्निंग्स. वो हमेशा मेरे दिमाग में एको होता है. कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स एंड creating a legacy for generations. So please join into the group and I'll give you the updates. Right now I want to complete on time. Thank you so much for being here guys. Saturday morning आजू बाजू में सब सोए होंगे और आप लोग उठ के यहाँ पे सेशन के लिए आए हो. That shows your commitment and that shows your extraordinary being. And believe me, we are here to honor that and to take you to another level of extraordinariness. So once again, thank you for being here. Stay tuned every Saturday at 8 a.m. It will be the same link. And जिन्होंने आपको invite किया, उनको आप thank you बोलना भूलिए. So perfect. Anybody wants to say in last 1 minute what have been your takeaways? Unmute and speak. I think today's session was extraordinary, and I'm just looking forward to see the next session of Nilesh. I can't agree more on what Nilesh said, and it reminds me a quote of a legendary investor. He says that, there are only two rules in investing. First is don't lose money, and second is don't forget rule number 1. I could relate that with Nilesh. Thank you. Extraordinary compilation of what Nilesh said. So bye-bye guys, have a great weekend and do come again for the expert speak session. Thank you so much Nilesh ji. You have been really a guiding star for me and for all of us. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, Nilesh. Thank you, everyone. Thank you. We'll be getting part B of Nilesh ji. In complete time. Thank you so much, Nilesh. Thank you, everyone.